السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا دوست محمد سجاد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو سجاد ملک ولاگ یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے، ان بھائیوں کے لیے ہے جو کہ اپنے کالے تیتر کو کھلا عادی کرنا چاہتے ہیں، یا جن کی یہ خواہش ہے کہ ہمارا تیتر جو ہے وہ کھلا پھرے اور کھلی بلائیاں کرے اور کھلا گھومنے کا عادی ہو جائے۔ تو آج کی جو میری ویڈیو ہے اسپیشل ان دوستوں اور ان بھائیوں کے لیے ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں جو کچھ کمی پیشی ہے، کھلا تیتر کو عادی کرنا صحیح ہے یا غلط ہے یا کیسا ہے، یا ایک شوقین کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ساری یہ باتیں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو بھائی، جو میرے بھائی اپنے تیتر کو کھلا عادی کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا تیتر کھلا عادی ہو، کھلی مستیاں کرے اور بولے، تو بھائی اس کے پیچھے جو فائدے ہیں وہ بھی پھر میں آپ کو بتاتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں، اور جو آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا اس کے لیے بھی پھر آپ لوگوں نے خود تیار ہو جانا ہے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلی بات اس شوق میں کیا ہے کہ ایک جنگلی تیتر اور پنجرے والے تیتر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے، ہمارے علم میں یہ باتیں ہونی چاہیے کہ یار ایک جنگلی تیتر اور پنجرے والے تیتر میں فرق کیا ہوتا ہے۔ تو بھائی ظاہر سی بات ہے، جنگلی جو تیتر ہوتا ہے وہ جنگلی ہوتا ہے، نہ اس نے شہر بازار رش کش بلائی چکری، گھر میں بولنا، چکری میں بولنا، تیتروں میں بولنا، اس کو اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو پنجرے والا تیتر ہوتا ہے اس کو ہم بچہ پکڑتے ہیں، اس کو پنجرے کا عادی کرتے ہیں، گھر کا عادی کرتے ہیں، اس کو تیتروں میں بلانے کا عادی کرتے ہیں، موٹر سائیکل پر عادی کرتے ہیں، بازار دکان چکری ہر چیز پر مطلب ہم اس کو عادی کرتے ہیں۔ تو جنگلی تیتر اور پنجرے والے میں ہو گیا یہ فرق۔ اچھا، اس کے علاوہ جی دوسری چیز دیکھیں، ایک تیتر کو پنجرے میں عادی کرنا کتنا مشکل کام ہے، کتنے ہم لوگوں کو، شوقین لوگوں کو جو ہے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بچہ کہیں سے لینا ہے، پھر اچھا بنے گا برا بنے گا، اس کے ڈر اتروانے ہیں، اس کو ہر چیز کا عادی کرنا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نر نکلے گا یا مادی، اس کے بعد اس کے سارے ڈر جھجک خطرے دور کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پتہ نہیں اس کا بولنے کا سٹائل کیا ہوتا ہے، اگر اس کے بولنے کا سٹائل ہی اچھا نہیں ہے، وہ ڈبل آواز مارتا ہے، یا اس کا گلا جو اپنے وجود سے بھاری ہے، تو پچھلی ساری جو ہماری محنت ہے اس پر پانی پھر جاتا ہے۔ اگر کئی دفعہ بہت کم چانس ایسے ہوتے ہیں کہ تیتر اچھا بھی نکلے اور بے ڈر بھی نکلے اور بے عیب بھی نکلے، اور بندے یا کسی مین چیز کا مستیل بھی نکلے، یا تیتروں کا بہت زیادہ بلار بھی ہو، یا اس کے پاس بہت لمبی بلائی بھی ہو، یا پھر وہ سپیٹر بلار بھی ہو سارے دن کا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ بالکل چھان بین کر کہاں سے کہاں تک چیز کو لے جانا ہوتا ہے، تب جا کر ہمیں ایسے رزلٹ ملتے ہیں۔ اور 100 میں سے کوئی 3-4 پرندے ہمارے ایسے نکلتے ہیں جو کہ ہر لحاظ سے پاس ہوتے ہیں، بے عیب بھی ہوتے ہیں، بے ڈر بھی ہوتے ہیں، سپیٹر بلار بھی ہوتے ہیں، مستیل بھی ہوتے ہیں، خوبصورت بھی ہوتے ہیں، ان کی نسل بھی اچھی ہوتی ہے، ان کے پاس بلائی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، کوالٹی بھی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ کام ہے سارے بڑے مشکل۔ اچھا، اس کے بعد پھر میں یہاں پر آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بات جو ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ تو یار آپ کا اگر ایک چھوٹا بچہ ہے، بیٹا ہے، آپ اس کو سکول بھیجتے ہو بچپن سے، تو آپ اس کو 20 روپے 30 روپے 10 روپے دے کر اس کو عادی کرتے ہو، تو ہو سکتا ہے وہ 15 سال تک اسی 10-15 روپے پر عادی رہے اور وہ خاموشی سے چلا جائے۔ اور اسی کے برعکس اگر آپ ایک چھوٹے بچے کو 1000 یا 500 پر عادی کرتے ہو اور 5 سال آپ اس کو اسی طرح 1000-500 دیتے ہو، اور اس کے بعد آپ بولتے ہو کہ نہیں جی ابھی تو یہ بڑا ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، تو اس کو میں 20-30 روپے دیتا ہوں تو اس کا گزارا ہو جائے گا، تو پھر بات ہے بڑی مشکل، کیونکہ آپ نے اس کو عادی ہی بچپن سے اسی طرح کر دیا ہے۔ تو بھائی اتنے سارے کام کرنے کے بعد پنجرے میں سارا کچھ دیکھیں، قید ہوتی ہے، قید، چاہے بندے کو قید کر لیں، چاہے کسی چیز کو قید کر لیں، تو قید ہوتی ہے قید، اور پھر قید میں عادی کرنا کسی چیز کو، یہ اس سے بھی مشکل کام ہے۔ اور پھر اس قید میں عادی کر کے پھر اس کو آزاد عادی کرنا اور پھر قید میں کھڑا کرنا، تو یہ پھر اس سے بھی بڑا جو ہے غلط کلیہ ہے، آپ لوگ اس پر غلط کلیہ اپلائی کرتے ہو۔ تو دیکھو نا، کام جو ہوتا ہے نا، ایک کام ہوتا ہے بھائی اس کی، اب ہم لوگ بیسک چیز پتہ نہیں ہم لوگ کیوں نہیں دیکھتے اس کی، کہ اس کی بنیاد کیا ہے۔ ایک چیز ہے یار، ہم نے اس سے ڈیوٹی کیا لینی ہے۔ دیکھو تیتر ہے پنجرے والا، اس کو پنجرے میں کھڑا کرنا سب سے بڑا مشکل کام تو ہے یہی۔
तो फिर बंदा उसको खुला आदी कर दे और फिर कुछ टाइम बाद उसको पिंजरे का आदी करे तो उसका दिमाग ख़राब तो है नहीं, वो फिर उसी आज़ादी में ही खुश रहेगा। वो पिंजरे में आपका तीतर कभी भी खड़ा नहीं होगा। जंप कल्टियाँ लेकिन दखनी तीतर होते हैं, अगर आप में किसी दोस्तों ने दखनी तीतर फिराए हैं तो आप फिर इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हो कि दखनी जो होता है ना, जब भी उसका 24 घंटे में खोलने का या खुला करने का टाइम आता है तो वो पिंजरे में जंप और तलखियाँ करनी शुरू कर देता है। वो टिकता ही नहीं है उसका पाँव पिंजरे में। तो फिर उसको बंदा निकालता है और 2-3 घंटे जो है वो बाहर घूमता है, फिर वो ठीक हो जाता है, जिसके बाद फिर बंदा उसको पिंजरे में डाल देता है। तो काला तीतर जो है यार, इसका आप लोगों ने ना टोटल करना है। जब भी आप लोग टोटल करना शुरू कर दोगे इस शौक में, तो आपका तीतर सेट भी हो जाएगा, तीतरों में भी बोलेगा, हर जगह का बुलार भी होगा, घर में भी बुलाई करेगा और जो है वो सारे काम वो करेगा जो कि एक पुराने शौकीन का तीतर करता है। जब आप इसके बहुत ज़्यादा नाज नखरे उठाने का शुरू कर देते हो, बहुत ज़्यादा इसको लूडा लाडा कर देते हो कि इधर ठीक नहीं है तो उधर ले जाता हूँ, उधर ठीक नहीं है तो इसको उधर ले जाता हूँ, ये अभी इस तरह नहीं कर रहा तो वो इसको नुस्खा देता हूँ, उस तरह नहीं कर रहा तो वो नुस्खा दे दूँ। तो भाई हर चीज़ को आपने ना टाइम देना है। नहीं बोल रहा है तो उसको टाइम दे दो, वो टाइम लेकर ठीक हो जाएगा। घर में नहीं वो सेट हो रहा तो उसको घर में टाइम दे दो, उधर भी वो सेट हो जाएगा। बैर बाजार में बुलाई नहीं कर रहा है, आप उसको 1-2 महीने उधर टाइम दे दो, आखिरकार परिंदा है भाई, उसने किधर जाना है, वो उधर सेट हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। तो चले जी, बात जा रही है थोड़ी सी दूसरी तरफ। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि क्या तीतर को खुला आदि करना ठीक है या गलत है। चले जी, बात को थोड़ा दूसरी तरफ ले जाते हैं। अगर आप लोग ये समझते हो कि यूट्यूब पर और टिकटॉक पर और वीडियो में बहुत से लोग जो है उन्होंने अपने तीतरों को खुला आदी किया हुआ है, या बड़े बड़े जो उस्ताद हैं वो अपने तीतरों को खुला छोड़ते हैं, तो भाई इन सारी चीज़ों के पीछे जो हकीकत है फिर थोड़ी सी वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह करे कि मेरी मेहनत जो है वो रायगा न जाए और आपकी बात जो है वो जहन में बैठ जाए और आपका जो अच्छा परिंदा है वो ख़राब होने से बच जाए। तो भाई वो लोग क्या करते हैं, ये मैंने भी आज आप लोगों को समझाने के लिए एक वीडियो इसी तरह की ढूंढ कर लगाई हुई है। तो भाई वो लोग क्या करते हैं कि जो तीतर एबी होता है, आज की मेरी वीडियो का जो मेन गुर है, आपको समझाने का मेन जो टॉपिक है, मेरा जो मेन मकसद है वो ये है। अच्छा, वो लोग क्या करते हैं, जो एबी तीतर होता है, जो फॉल्टेड तीतर होता है, जो बूढ़ा तीतर होता है, ज़्यादा उम्र वाला, जो ऐसा तीतर होता है कि जिससे हम लोग तवक्कुआत रखनी छोड़ देते हैं कि ये हमें आगे बेहतर रिजल्ट नहीं दे सकता, ठीक है। वो किस तरह का तीतर होता है, वो इस तरह का तीतर होता है जिसका गला, ये जो सामने खुला हुआ तीतर है ये भी आप गौर से देख लें, और सामने एक पिंजरे में दूसरा तीतर पड़ा हुआ है जिसके नीचे ब्लैक कलर का कपड़ा बांधा हुआ है और जिसकी बड़ी कट और शॉर्ट कट आवाज़ है, ठीक है। वो भी मेरा पट्ठा है ज़ाती, और ये जो बैर निकला हुआ है ये मेरे दोस्त का है। तो मैं जस्ट एक आप लोगों को समझाने के लिए वो वीडियो बना रहा हूँ कि हम लोग फिर उस तीतर को, या बड़े शौकीन लोग जो होते हैं उस तीतर को बाहर निकालते हैं। नंबर 1 या बूढ़ा तीतर होता है, नंबर 2 जिसका गला बहुत बड़ा होता है और आवाज़ उसका बोलने का कोई स्टाइल नहीं होता है, और नंबर 3 जो मिनट में स्लो बुलार होता है, जो मिनट में 3 से 4 आवाज़ें मारता है, और नंबर 4 चीज़ उसमें ये होती है कि उसका गला बड़ा है तो वो थक जाता है, कोई स्पीटर बुलार नहीं है। तो ऐसा तीतर जो होता है ना, जब हम ये सोचते हैं कि यार इस पर मेहनत करनी फजूल है, ये फॉल्टेड है, ये ऐब वाला है, ये चक्री के काबिल नहीं है, ये इस काबिल नहीं है कि बंदा इसको चक्री के लिए तैयार करे और इस पर बंदा मेहनत करे, तो जो ऐसा तीतर होता है ना, बिल्कुल बंदे के बाद जहन में आ जाती है कि बिल्कुल इस पर मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ उस काबिल नहीं है, इसमें कोई भी ऐसी जो है वो क्वालिटियाँ मौजूद नहीं है। तो फिर हम उसको क्या करते हैं कि दूसरी तरफ ले आते हैं, एक स्टेप उसको पीछे ले आ देंगे। मेहनत तो इस पर वैसे हम लोगों ने करनी ही नहीं है, तो चलें जस्ट वीडियो के लिए बंदा उसको इस्तेमाल कर लेता है। तो आपके जहन में ये चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, आज का जो मेरा आपको समझाने का मकसद वो ये है कि अच्छा एक बात इसमें और है, आप लोग कभी कभी ये चीज़ देखते हो कि एक तीतर होता है, बड़ा तीतर होता है, लोग कहते हैं कि यार जो बेचने वाले लोग होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि यार ये बोल नहीं रहा तो हमारे पास तो बहुत ज़्यादा पड़े हैं, या हमारा जस्ट कारोबार ही एक यही है, ले लेना और बेच देना, तो आप ये ले लो, 8-10 हज़ार का सस्ता आपको मिल रहा है, तो आप क्या करोगे कि इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करोगे, अभी टाइम नहीं है, फलान है ढिमकान है, ये सेहत में नहीं है, तो ये जैसे थोड़ा सा मस्ती में आएगा, सेहत में आएगा, तो ये तीतर बुलाई शुरू कर देगा। तो वो आपको मुतमईन करने की कोशिश करता है
कि 8 से 10,000 का आप ले लो। वहीं पर एक जो पट्ठा होता है, एक जो छोटा निखरा हुआ पट्ठा होता है, उसका भी एक बंदा होता है बेचने वाला, वो 10,000 मांग रहा होता है। तो कभी आपने ये चीज़ ज़हन में सोचने की कोशिश की है कि यार एक छोटा पट्ठा है, वो भी हमें 10,000 का बंदा 10 से नीचे कोई नहीं दे रहा, और एक जो है वो बोलने वाला तीतर नहीं है, खामोश तीतर है, तो वो भी वो कहता है कि 10,000 का आप मेरे से ले लो। तो इसमें क्या फ़र्क है? तो भाई जो छोटा पट्ठा होता है वो बेऐब होता है, वो ऐबों से पाक होता है, उसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं होता, उस पर बंदा तवक्को कर सकता है। और यही वजूहात होती है कि जो बड़े तीतर होते हैं उनसे पट्ठे महंगे होते हैं, या फिर जो बड़े तीतर होते हैं पट्ठों की और उनकी कीमत में कोई फ़र्क नहीं होता, वो एक जैसे होते हैं। तो जो बड़ा चुप तीतर होता है वो उसको जब लोग सेल कर रहे होते हैं, तो आपने बात ज़हन में रखनी है कि कोई ना कोई इसमें ऐब है, कोई ना कोई इसमें फ़ॉल्ट है, जिसकी वजह से ये बंदा खुद नहीं रख रहा है, इसको सेल कर रहा है। और पट्ठे जो होते हैं वो महंगे इसी वजह से होते हैं कि वो बेऐब होते हैं, उनमें कोई फ़ॉल्ट नहीं होता। कोई भी बंदा अच्छे से अच्छे शौकीन भी उनको ज़्यादा पैसों में ख़रीदता है, और नए से नया अनाड़ी बंदा भी उसको ज़्यादा पैसों से ख़रीद लेता है, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजूहात की बिना पर कि कल को उससे तवक्कुआत की जाती हैं कि ये अच्छा तीतर बन सकता है, ये हमें अच्छा रिज़ल्ट दे सकता है। अभी एक पट्ठा है, उसका माशाल्लाह स्टाइल हो ऐसा प्यारा कि 8-9 का वो चल दे 1 मिनट में, तो वो तो कल को आपका लाखों का बिक सकता है। और उसी के ब्रैक्स अगर एक आप बड़ा तीतर ले रहे हो तो वो पहले से फाल्टेड है, अगर वो आपके साथ बुलाई कर भी जाए, पहले तो वो पिछले मालिकों ने उसको अपनी तरफ से तसल्ली करके दिए होता है कि ये फाल्टेड है, ये ऊपर वाले रेटों पर ना ही बिकने वाला है और ना ही हमें कोई बेहतर रिजल्ट दे सकता है। तो वो कल को आपके साथ आवाज़ें कर भी जाए तो उसने सारी ज़िंदगी यही 10,000 15,000 पर आगे सेल होते रहना है। तो यही वजह होती है कि एक जो पट्ठा होता है उसका रेट भी ज़्यादा होता है, और जो बड़ा तीतर होता है उसका रेट होता है कम, या कम से कम पट्ठे के बराबर होता है। तो भाईजान आज की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग करने का, सारी बातें आपको समझाने का जस्ट सिर्फ एक ही मकसद है कि आपके पास अगर छोटा पट्ठा है या पहली या दूसरी बुलाई वाला पट्ठा है, तो भाई उसको आपने खुला नहीं छोड़ना है, खुला आदि आपने नहीं। हाँ, एक बात और है यहाँ पर, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमारा ये जो शौक है ना काले तीतर का, ये 4 हिस्सों में तकसीम होता है। एक घर और घर की बुलाई वाले लोग होते हैं, दूसरे जो है वो दुकान की बुलाई के शौकीन लोग होते हैं, तीसरे नंबर पर शिकार वाले लोग होते हैं, और चौथे नंबर पर चकरियों वाले जो शौकीन लोग होते हैं, मुकाबले वाले, वो होते हैं। ठीक है। हाँ, अगर आपने, अच्छा सबसे पहली बात ये है कि आपने जो आपका जो छोटा पट्ठा है, यंग पट्ठा है या बच्चा है, उसको आपने खुली बुलाई पर आदी नहीं करना है। उसके डर उतरवाएं, सारा कुछ करें, लेकिन आप उसके साथ एक मकसद तक तल्लक रखें, जहाँ तक आपका उससे बुलाई लेने का मकसद है आप वहीं तक रखें। ठीक हो गया। अच्छा, क्या होगा अगर आपका वो पट्ठा जो है परवान चढ़ता है, जवानी में आता है, बहुत अच्छा स्पीटर बुलार होता है, तो यार वो चक्रियों के लिए वो क्या होता है, काबिल इस्तेमाल में उस चीज़ को लाया जा सकता है, और कल को चक्रियों में आपको ना ही वो धोखा देगा और ना ही कभी आपके लिए वो शर्मिंदगी का बायस बनेगा, क्योंकि वो पिंजरे का आदी होगा, स्पीटर बुलार सही, वो बम बुलाई करेगा तीतरों में भी और चक्रियों में। अच्छा, इसके बरक्स अगर आपको चक्रियों का शौक नहीं है, तीतरों में बुलाने का आपको शौक नहीं है, आपका घरेलू शौक है, या आप टिकटॉक की वीडियो या आगे पीछे इसी तरह रखना चाहते हैं, तो फिर जी जस्ट आपको मेरी तरफ से इजाज़त है, आप उस तीतर को जैसे आपकी मर्ज़ी हो आप उस तरह उसको आदी कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर आप लोग ये सोचते हो, ये समझते हो कि ये बेडर है, बेऐब है, मेरा खुला घूमता है इस तरह उस तरह, फिर वो कभी भी पिंजरे में नहीं खड़ा होगा। अगर वो पिंजरे में बुलाई भी करेगा तो उसकी अपनी मर्जी होगी, हो सकता है, अच्छा वो फिर इस लाइन में आ जाता है, हो सकता है कभी वो आपको पूरे दिन की अच्छी बुलाई कर जाए, 2 से 4 दिन की जो है वो अच्छी बुलाई कर जाए, लेकिन कभी भी इस तरह हो सकता है वो ऐसी हरकत किसी टाइम भी कर सकता है कि बुलाई करते करते कभी भी वो उसके ज़हन में जिस टाइम वो चीज़ आएगी ना, देखें जी कैद जो होती है वो कैद होती है, चाहे उस कैद में कितनी सहूलतें हों, और जो आज़ादी होती है वो आज़ादी होती है, चाहे उसके अंदर जितनी तंगियाँ हों। तो कभी भी आपका तीतर तीतरों में पड़ा है या वो चक्री में पड़ा है, तो बुलाई करते करते जब भी उसके ज़हन में वही बैर वाली आज़ादी आएगी, तो वो बुलाई छोड़ देगा और जंपें और कल्टियाँ मारनी शुरू कर देगा कि मेरा तो जी पिंजरे से बाहर निकालने का टाइम हो गया, तो मुझे बाहर निकालो। तो फिर जो है आपकी जो एक चक्री की मेहनत होगी या तीतरों के अंदर रख कर बुलाई लेने की जो मेहनत होगी, वो सारी 5 मिनट के अंदर अंदर वो चीज़ जो है वो
ضائع ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، ساری باتوں کا جو مختصر ترین خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا اگر ینگ پٹھا ہے تو آپ اس کو باہر نہ نکالیں پنجرے سے، اس کو کھلا گھومنے پر عادی نہ کریں، وہ پھر بلائی کم کرے گا اور یہی الٹی پھلٹی چیزوں کی طرف اس کا خیال زیادہ رہے گا۔ اور دوسری طرف اگر آپ کا چکری والا کی طرح ایک سپیٹر بلا رہے تو اس کو بھی آپ پنجرے سے کم نکالیں، کیونکہ وہ پھر بلائی چھوڑ جائے گا اور دوسری طرف اس کا دھیان رہ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کا چکری کا شوق نہیں ہے تو پھر آپ کسی بھی طرح اپنے تیتر کو آپ عادی کر سکتے ہیں، پھر اس کے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس کا نقصان نہیں ہے۔ تو یار میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو جو ہے آپ کے لیے ایک پسندیدہ ویڈیو ثابت ہوگی۔ تو بھائی ریکویسٹ آپ سے یہی ہے آخر میں کہ چینل پر فرسٹ ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔